Press the bell icon for all the updates. So forgive me if I'm not taking a few names. जफर साहब हैं यहाँ पर. Hi जफर साहब. मनोहर साहब, आपने साउंड रिकॉर्डिंग का इस मतलब it was just even today एक एक शब्द याद है. Thank you so much. फैजल खान साहब हमारे साथ हैं. Thank you so much. Really. I mean, forgive me if I'm not taking a couple of names, but Alkaji unfortunately had to leave. But please, ladies and gentlemen, can I have the honors of all of you having a seat, and let's talk Q and QSQT. Yes, thank you. I'm going to, yeah. You know, Yes. I understand that everyone can't come on stage, but let's keep a mic for any of the cast and crew who might want to say something, Correct. you know, while we are talking. Thank you. मकरंद को तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा. Mac. माइक नीचे भी रखो भाई. So I'm going to sit a little थोड़ा सा आपसे हटके. So सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि there were these moments जहाँ पर लोग गा रहे थे, हंस रहे थे, हर एक शब्द लोगों को याद था. और पहला सवाल तो यही होगा कि इस ऑडियंस के साथ ये फिल्म देखकर आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया मुझे यार. I really loved watching this film with all of you, with everyone who loves QSPT so much, like all of us. And it was a very wonderful and warm experience that we had today. Thank you so much. Yeah, see, the difference was when we celebrated 25 years, it was in a small theatre. So, you know, it was like a private screening. So, we don't get this feeling. It was completely different. Yeah, that was only cast and crew. Today it's with the audience also. That's the difference. मंसूर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जब ये फिल्म लिखी गई थी और जब आपने पेश की ऑडियंसेस को उस वक्त आपको लगा था कि इस फिल्म की तकदीर जो है वो इतनी बड़ी या इतनी लंबी होगी? ऐसा तो मैं कुछ सोच नहीं रहा था. I was just trying to save my own skin. I dropped out of college. I wasted a lot of my father's money. I gave him a lot of trouble. So I was writing Jo Jeeta, because that is a story about a useless guy. Now I couldn't write that. I was that useless. So this came along the way, and my dad says, you know, I'm writing something, and obviously he had Amir in mind to launch, and he had said, you know, he knew in his heart that a good love story hadn't come for a long time. He had a great sense of the audience, you know, which I didn't have. So when he said, you know, I'm writing it, and I'm saying I'm writing my stuff, तो मेरी कहानी तो खत्म ही नहीं हो रही थी, उनकी खत्म हो गई. So then he says, see, you haven't written it yet, so listen to this. I was forced. I said, what is it about? He said, it's a love story. I said, Daddy, every film is a love story. That was my first reaction. And but when he narrated the first 11 scenes, you know, he had set it up so well. The prologue, which is dialogue by dialogue, and you know, I could literally see the scenes in front of my eyes, and it convinced me that this is a legitimate setup for a good love story. But obviously, in my mind, it was a tragic end. Which You know, you brought it up, so I think हमें इस बात पर इसी वक्त बात करनी चाहिए. बहुत ही अनकन्वेंशनल चॉइस था, क्योंकि कौन कमबख्त अपने कहते हैं ना कि बारिश को एक ऐसी फिल्म में लॉन्च करना चाहे जहाँ पर कहेंगे कि जो हीरो है वो मर जाता है. कौन कमबख्त वो हीरो था जिसने कहा कि मैं अपनी पहली फिल्म में खुद को खंजर मारूंगा, और कौन कमबख्त वो डायरेक्टर थे जिनको लगा था कि ये फिल्म चलेगी. सो बट आप अड़ गए थे. मुझे ये पता है, किताबों में मैंने पढ़ा है कि आप अड़ गए थे. आपने कहा कि ये एंड चेंज नहीं होगा. Well, actually, मेरे दिमाग में it was always like that, and my sister Nuzhat and Amir were involved with Daddy from the beginning. जी हाँ. So actually, that was his idea also. But somewhere along the line, I think he softened up and he felt that, especially because the first few schedules went well and he thought it was going really well. So maybe he felt safer if it was a happy ending. Correct. But I think originally his vision was also a Romeo and Juliet. Yes. So that is the premise of the film. Yeah. It's on? Okay. Now, I want to remind you, Mansoor, that in the first schedule, we shot the climax.
and he had written, Nasir Saab had told us to shoot a happy end also. Okay. So he had told us कि तुम लोग दोनों end shoot करके आना, एक happy और एक sad, जो अपना tragic end. First schedule में we were shooting the Ooty part, romantic jungle में घूम गए, and this climax. तो Mansoor and I, Nusrat, all three of us were convinced of the tragic end. So we shot this with a lot of heart and gusto and the real feel. And then Mansoor said, now we have to shoot Daddy's version as well. You know, And all of us were like, oh, okay. So I think half-heartedly we kind of. Yeah, no, see, the proof of the pudding was already there. Because after we shot the tragic ending, so I said, Abhi, tu karna hi hai. Because every evening my father would call and he would not ask anything else. I used to say, happy ending zarur shoot karna. So that was. Nizat? I want to add to that. I want to remind both of you all that actually the germ of this story started when my dad said it has to be a Romeo and Juliet where they die in the end. So that was his first idea. Yeah, I know. Wow. And in fact, until we got the prologue in line, there was no story because he said it has to be a reason so strong that there is no possibility of the two families coming together. So that was the first thought in his Yeah, mind. exactly. And it was the prologue was written such that it set the premise of the film. लेकिन क्योंकि आप ये प्रोलोग की बात कर रहे हैं उस वक्त मुझे याद है कि ये जो पहला टाइटल था, कैन एनीबडी गेस व्हेन QSQT वाज रिटन तो वर्किंग टाइटल क्या था एक्सेप्ट दिव्य सोलगामा एंड अक्षय मनमानी, और कोई भी ये जवाब दे सकते हैं? हाँ सर, जोर से बोलिए. कास्ट और क्रू आंसर नहीं कर सकते कैसे? नफरत के वारिस. And at this point, Nusrat, I'm going to look at you क्योंकि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है you had something to do with this. That's a false rumor. No. ये टाइटल पहले था लेकिन is that true? और जब ये फिल्म बन रही थी, जब नफरत के वारिस बन रही थी, एक और चीज बता दूं आपको, of course the tension, the drama जिसे कि आप कहते हैं, वो दो जो फादर फिगर्स हैं फिल्म में, धनराज और आज I think this is a moment where all of us will acknowledge गोगा कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. I mean the most डरावना fathers for this generation. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पहली ये फिल्म लिखी गई थी, दो लेजेंड्स को इन दो लेजेंड्स के रोल में कास्ट किया गया था. वो दो लोग कौन थे? जी हाँ, ऐसा हमने सुना था. आज हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? नेवर? ओके, ऐसी बात हुई थी that there was a version and then of course this version was written. लेकिन अगर वो फिल्म उस वक्त बनती या फिर आज भी बनती, what I found was the contemporariness of this film, because बहुत सारे moments थे जहाँ पर आज भी लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, and I just felt कि ये romance आज भी हो सकता है. But I think one of the most beautiful confluences is the fact that there was the older generation, the more experienced generation, and this new blood. तो आपको लगता है कि this was one of the biggest reasons why the film has turned out the way it is? Well, actually, I think it was a perfect compromise between my father's experience and his style of writing, his humor, his situational understanding, and the little different thing which I was trying to bring in, which was to remove the cliche. So we used to fight a lot. There were days when we didn't speak to each other, and Amir and Nusrat would be most worried because उनको लगता था गाड़ी रुक गई है and it won't go ahead. But obviously the ball was actually in my court because I didn't know how the hell to explain to him what was it that I wanted to do. Correct. So whereas he knew very well what he has done through his whole career and he knows his strong points and all that, but he just wanted to understand कि अच्छा तुम कैसे लिखोगे ऐसी? You know what I mean? He would throw the ball in my court, and sometimes I was not able to. I would say it in words. जी. So it was a perfect. If you look at the film, about 50% is exactly his scenes, Yes. and there are roughly half of it which I brought in my sensibility of it. जी हाँ, जी हाँ. I think we must at this point talk about the music. मैं जानना चाहूँगी आनंद जी, मिलिंद जी आपसे कि जब ये फिल्म आप तक आई थी, तो आपको पहला ब्रीफ याद है? क्योंकि एक्चुअली कन्वेंशनली उस वक्त बहुत गाने हुआ करते थे एल्बम्स में. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टाइटेस्ट एल्बम्स बिकॉज देयर इज अबाउट कितने 5 गाने थे, 4 साढ़े चार एग्जैक्टली. तो आपको याद है कि क्या बोला गया था आपसे?
I think Mansoor was very clear. He didn't want any extra songs and all that. और ये जब नासिर अंकल से जब हम लोग की मीटिंग हुई थी, उसके पहले we had many informal sittings जिसको बोलते हैं with Mansoor. जी तो उसकी जो लाल गाड़ी जो फिल्म में भी है, मारुति वैन, तो हम लोग की म्यूजिक सेटिंग उसी में होती थी. So he used to just keep driving down anyway. Carter Road, Bandstand. Drive down Carter Road, Bandstand, and play the cassette of rough versions of the song. Sing something, then used to say, हाँ ये अच्छा लग रहा है, let's keep this. Singing the obligatos, arrangements. उनका फेवरेट गाना है इसमें से याद है आपको? नहीं फेवरेट गाना तो नहीं याद है मगर एक गाना I have mentioned this many times. I don't know whether Mansoor is also aware of this incident. It's a very funny incident. ये जो गाना था ए मेरे हमसफर, तो that time Mansoor had gone to Mandwa. That was his hideout. He used to go there very often. एक दिन सुबह सुबह नासिर साहब का फोन आया at around 8:15 in the morning. He was taking car and their house was just a few meters away. तो he told me कि बेटा वो गाना जो है हम लोग को अभी शूट करना है, तो कुछ सोचा है आपने? तो आई थॉट कि मंसूर इज नॉट हियर, और एक दो कुछ ऐसी रफ आइडियाज थे. बोले कि जब वो आएगा तो फिर कर लेंगे. तो मैंने पहली बार जिंदगी में झूठ बोला. ऐसे अंकल हाँ सोचा है, कैसा है? ऐसे बहुत अच्छा है. एंड यू नो द फैक्ट इज, बिलीव मी, वी वर ब्लैंक. नाउ व्हाट नासिर साहब सेड, he said, he told me that मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो तुम्हारे म्यूजिक रूम में होते हुए जाता हूँ. So I said कितने बजे तक? I said बस 15-20 मिनट. I didn't know what to do. I said यार ये मैं पहली बार झूठ बोला और ये तो फंस गया मैं, और वो भी मंसूर ने नासिर अंकल को कैसे टैकल करूँ. I went in the music room. I knew the situation and all that. Just closed my eyes. And first instant, tarara, tarara, tarara. So I asked him, कैसा लग रहा है? He said बहुत अच्छा लग रहा है. So गिटार लेके ये बैठा. सेकेंड हाफ क्या करूँ? तारा, ठीक है. तारा, जैसे ट्यून आई दिमाग में, he just put it on the cassette, doorbell and नासिर अंकल का. ओहो, यू नो उदित जी से मैं, क्योंकि ये मोमेंट है, उनसे ये 2 लाइन गवाइएगा प्लीज. Yeah, sure. प्लीज उदित जी प्लीज. नमस्कार, good evening, आदाब. First of all, I want to congratulate entire team of QSQT for completing 30 years. And whatever I am today, it's because of QSQT. मैं एक जन्म नहीं 7 जन्म तक भी अगर होता है तो मैं नासिर साहब, मंसूर भाई, आमिर भाई, आनंद मिलन जी, जूही चावला जी, जितने भी क़यामत से क़यामत तक से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, हमारे ताहिल साहब से लेके सब, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला. और क़यामत से क़यामत तक के बारे में जितना भी कहा जाए कम है. हिस्ट्री क्या बोलते हैं, कभी रिपीट नहीं होती. क़यामत से क़यामत इज़ लाइक ए हिस्टोरिकल फिल्म, और ये हमेशा लोगों के दिलों में म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म में लोग याद करेंगे. अभी भी आपके लिए मेरी आवाज़ करेक्ट है. आप कहीं भी एक्टिंग करते हैं. ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं तेरे ही है मंजिल प्यार की.
अब मैं जुच्ची साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी जरूर. जरूर करिए. आपके साथ बैठकर फिल्म में देख रही थी and you were the most upset during that film, in the film. Throughout the film. Yeah. Like आप इन्हें बचाना चाहते थे लेकिन क्या करें? I played Amir's super ego. जी हाँ. Whenever he strays, I'm there to hold his ear and say, भाई देखो ये नहीं करना चाहिए, ये लड़की ठीक है, ये तुम ठीक नहीं. So I'm constantly doing that. Yes. मुझे बताइए नासिर साहब ने पहली बार आपको मिलकर कौन सी शर्त रखी थी? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. Ladies and gentlemen, जब मैं पहली दफा पहुंचा नासिर हुसैन फिल्म्स, I was shooting in Lucknow with Sudhir Mishra and I got a call saying कि भाई बम्बई से एक कॉल आया. तो I said very good. किसका कॉल था कि मैंने कहा नंबर लिया आपने? हाँ साहब नंबर लिया है, एक मंसूर साहब को ही है. अरे मैंने कहा मंसूर साहब हाँ बिल्कुल लाइए दीजिए मुझे. And I called back on that number. It was a residence number, I think मंसूर घर का नंबर, जहाँ पे नुसरत जी ने फ़ोन उठाया और ये वो मैंने कहा जी मेरा नाम राजुच्छी है, मैं मंसूर साहब से बात करना चाहता हूँ. मंसूर साहब इधर उधर हैं, कहिए. मैंने कहा मुझे मैसेज आया था कि भाई नासिर हुसैन फिल्म्स आइए. मैं आमिर से परिचित था उससे पहले. वी काइंड ऑफ वर्क टुगेदर ऑन अ फिल्म कॉल्ड होली. तो खैर नुसरत से बात हुई. शी सेड यू कम टू द ऑफिस टुमारो एंड आई लैंडेड अप. Very nervous. One of my big films. Very early in the day. I was a young Kola bacha, and except that I had a very Amir Khan type huge muchi. Amir is of today, and I had a dali wali ye sab, and I went in Nasir Saab's hallowed presence. I loved his room. He got up, said hello. कोने में नुसरत जी बैठी हुई थी, मुझे याद है. मंसूर साहब थे, आमिर साहब थे. आमिर I knew, so we hugged and I sat down. नासिर साहब ने कुछ बड़े जल्दी से कुछ मुझे कहानी सुनाई कि भाई ये है. And I said yes sir, thank you so much. ये वो. And then suddenly I found him looking very hard, staring at me like really staring. तो मैं थोड़ा सा conscious हुआ. I didn't know where to look. And एक बात कहनी थी आपसे, आप बुरा ना माने. मैंने कहा जी कहिए. इस वक्त आपका जो लुक है जी वो निहायत बरखुरदार टाइप है. By बरखुरदार he meant like a seasoned gentleman, तजुर्बेकार जिसको कहा जाता है. And he said भाई आप आमिर के हम उम्र टाइप बने हैं तो ये तो यंग लग रहे हैं, तो आप ये दाढ़ी वाड़ी ये सब मतलब निकाल दें तो बेहतर है. तो मैंने कहा सर मैं कल ही आता हूँ. Only thing is when I take it off I look like a little chooser, if that's okay with you. So here I was looking like a chooser in the film and loving it. So that was क़यामत से क़यामत तक की शुरुआत, निहायत historic. Thank you so much. दिल ताहिर साहब, एक सीन है जो आज तक लोग थिएटर में भी जब सुनते हैं तो वो कांप उठते हैं, और वो है मैं आज भी वही धनराज हूँ. 14 साल बाद आपने फिल्म में कहा था मैं कहूँगी 30 साल बाद भी ये वही धनराज है कि नहीं? लेकिन वो लाइन, वो सीन, इसके पीछे कुछ तो एक मैजिक है. Why do you think आज तक ये इतना पावरफुल है? पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप सब आए यहाँ पर आज शाम को. और मेरे जितने भी कास्ट और डायरेक्टर हैं और बाकी भी जो यूनिट के लोग हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ. और हमें बहुत खुशी हुई है कि ये फिल्म आप देखने आए और सपोर्ट किया आप लोगों ने. ऑल्सो बिग थैंक यू टू रेडियो नशा फॉर होस्टिंग दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग इवेंट. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर भी 30 साल बाद वही पिक्चर है जो 30 साल पहले हुआ करती थी. तो अभी उसमें से मेरा जो डायलॉग है वो तो डायरेक्टर के नासिर साहब ने वो लाइंस लिखे, और उस समय तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो जाएगा. और मेरे भी एक्सपीरियंस कुछ जुल्सी की जैसे थी. मैं बुनियाद कर रहा था उस समय, और मुझे याद है कि मुझे फ़ोन कॉल आया नासिर साहब के दफ्तर से. किसी ने कहा कि नासिर साहब आपको बुला रहे हैं. तो उस ज़माने में तो वही होता था कि भैया मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की. फिर मैंने सोचा कि भैया मैं तो नासिर साहब को जानता ही नहीं हूँ, तो मैंने क्या गलती की होगी. खैर
का दफ्तर होता था महबूब स्टूडियो के ठीक सामने। तो मैं उनके दफ्तर आया और जैसे मैं दफ्तर के अंदर आया तो 3 बच्चे जैसे बैठे हुए थे साइड पे। एक मंसूर साहब थे और एक गोरा गोरा सा लड़का था जो रेड लवली चीक्स ऊपर गोरा तो यूं बैठा हुआ था, वो अभी था। और उनके बगल में नुसरत बैठी थी। तो नासिर साहब ने मुझे बहुत मतलब उन्हें कहानी सुनाना शुरू की उन्होंने। जब वो प्रोलॉग के पॉइंट पे आए, जब मैं उसको गोली मारता हूँ, तो मैंने कहा नासिर साहब हो गया, मैं ये रोल करने वाला हूँ। आप मैंने सोचा कि आगे जाके माइंड चेंज हिज माइंड। तो आई सेड नो सर, आई विल डू दिस रोल, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो मैंने उनसे ये पूछा उस समय, मैंने कहा कि सर इस फिल्म के हीरो कौन है? तो उन्होंने कहा वो बैठे, वो फिल्म के हीरो है। और आमिर जैसे हम स्कूल में करते थे ना, टीचर पूछते हम कहते प्रेजेंट मैम, उसका हाथ उठाया। फिर उसको हमने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्कूल में फौरन हाथ नीचे रख दिया। और मंसूर यूं ही बैठे हुए थे जैसे आज है, बस यंगर, उनकी मूंछ भी काली थी, लेकिन ऐसे ही बैठे थे कि मुझे लग रहा जैसे उनके ये प्रश्न पूछ रहे थे कि ये मैं पिक्चर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर है उस पिक्चर का कि नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं। इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और बाद में मैंने जब नासिर साहब जब ये पिक्चर हम शूटिंग कर रहे थे, तो एक सवाल मैं नासिर साहब से बहुत पहले से पूछना चाह रहा था, वो मैंने हिम्मत उठा के पूछी। मैंने कहा नासिर साहब, इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना बढ़िया रोल है, इतना पावरफुल रोल है, आपने मेरे बारे में कैसे सोचा? तुमने कहा गरीब, मैंने तुम्हें बुनियाद में देखा था और मैंने कई कैरेक्टर आर्टिस्ट को ये रोल ऑफर किया, कई नहीं मतलब 2-3 कैरेक्टर आर्टिस्ट को ये रोल ऑफर किया है, लेकिन सबने इनकार किया। और इसलिए इनकार किया कि वो बाप नहीं बनना चाहते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को, और मेरा ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने हाँ बोल दिया और बाप बन गए, जो भी था। लेकिन इस रोल ने मेरे करियर पे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, परिवर्तन आया। और आप सबकी दुआ और प्यार से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस स्टारकास्ट का, मंसूर का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डायलॉग तो बोलना पड़ेगा। रणधीर सिंह, तुमने मेरे बेटे की तस्वीर अखबार में तो छपवा ली है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे राज पे कोई आंच आए तो मैं वही धनराज हूं जो 14 साल पहले हुआ करता था। आमिर, I remember जब ये फिल्म शुरू होने जा रही थी, आपने कहा there are many moments that you cringe when you watch this film. एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर आज भी आपने क्रिंज किया। ब्रिज जी, आपको मैं माइक अभी भेज रहा हूँ, ये आंसर करें। एक्चुअली जब मैं अपना काम देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतर हो सकता था। और ख़ास तौर से ये फिल्म जब मैंने देखी तो आई लव जूही's वर्क। आई थॉट जूही वाज फैंटास्टिक। You know, she was really bang on, very natural. I was very raw, you know. Some scenes I did okay, some I did too well, some I fumbled through. बहुत मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता। और मैं convinced था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो जूही को लोग बहुत पसंद करेंगे, और दलीप गोगा, ये really strong performances. But मेरा काम इतना पसंद नहीं आएगा लोगों को, and fairly, I mean, rightly so, because I also didn't like my work. But I don't know why people like my work. I have no idea. No, I'm serious. I'm not joking. You remember, Nusrat, we should discuss this, Zuchi. I was very unhappy with my work. I'm still unhappy with my work. Reshoot कर सकते हैं तो करते हैं भी है। तो किस्मत अच्छी थी शायद मेरी। No, this is a family trait. So I also feel that way. In fact, जब पहला trial हुआ, we did this outdoor, you know, and in those days, मतलब हम लोग गए, हम लोगों ने एक romantic scene, एक जंगल में घूम गए, ये वो, and the climax. Just imagine, we've already come back now. It's the fate is already sealed. तो जो पहला ट्रायल हुआ तो डैडी वाज देयर, एंड ऑफ कोर्स ही वाज मोस्ट एंग्शियस. ही नेवर केम ऑन द सेट, यू नो. ही हैड फुल, मतलब ही गेव मी फुल, ऑल ऑफ अस फुल रेन. तो वी वॉच्ड द थिंग एंड आई वाज क्रिंजिंग थ्रू आउट द ट्रायल.
partly out of inexperience also, because I didn't realize that it can be corrected. And when we walked out, I was constantly saying, "अरे ये गलत है, इसको reshoot करना है, ये तो बहुत बकवास है, इसको ये करना पड़ेगा." I could see my dad walking with such a confident step. He was just not listening to me, you know. He was just, मैं पीछे भाग रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. So yeah, that's how it is. I think we learned not to be too critical also, because there are certain things that you just won't get what you had in your head. Yeah. क्या बात. You know, I must mention that for 88, there are few lines Juhi ji के, because we're speaking about her, जहाँ पर आज तालियां और सीटियां बज रही, because आज 30 साल बाद context अलग है, but there were some beautifully, if I may say, feminist moments in this film, जहाँ पर जुही जी कहती है कि कोई और decide नहीं करेगा, and I think my team, it is a bunch of crazy women, you know, at Radio Nasha, and I think we hooted and we clapped the most, and thank you for giving us a liberated girl in the That movies, was even my back dad's then. doing. My dad had written the character. She talks hum. She's open. She's clean. She's, you know, she's bold. Everything was very मतलब उसको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं. She doesn't even. 2-3 other friends are there and all that, and she comes up. So yes, the beautiful innocence, and that was there in the writing, in his conception, in her lines, everything. And when I heard the thing, he asked me कि आमिर तो है ही, making the film for him, but who's going to be the girl? And I immediately said Juhi Chawla, because I had met her before, and she just struck the right chord in my head. You know, I had not worked with her, Yeah. but I just felt, and she surpassed that in the film. Today I was watching it even more closely, and I was watching her nuances more closely, and I really felt, my God, you know, for a model, and yeah, you know, somebody's from the Western world, and she was a model, but she did very well. Yes, yes, Nobody yes, else did absolutely. well. This is the first time he told me that in 30 years. Okay, first time in 30 years. Let's ask you, Amir. ब्रिज को कुछ बोलना था. हाँ, ये माइक है. ब्रिज जी, आपको माइक की कब से जरूरत पड़ गई? जनाब आमिर साहब जी. मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की कि मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन नहीं कहिए. मैंने जुत्सी साहब की सुनी, फिर दिलीप भाई की सुनी, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया. 2 मिनट चाहूँगा सर. बिल्कुल. एक दिन मैं थक के खा के सर पूरा दिन स्ट्रगल करके शाम को घर आया, तो मेरा बच्चा छोटा था, उसने बोला कि आपके लिए कोई फ़ोन आया था नासिर हुसैन के यहाँ से. मैंने कहा नासिर हुसैन का नाम कैसे दे रहा है, मैं तो कभी गया नहीं, मिला नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं. तो उस बच्चे ने मुझे पर्चा दिया कि नंबर है. मैंने इसको बोला, तो घर में मेरे फ़ोन नहीं था, कोई रिक्वेस्ट नंबर पर आया था, तो मैंने वो 8 आने के 5-6 कॉइन लिए, मैं रोड पे गया, मैंने फ़ोन किया. जिस सज्जन ने उठाया उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मिर्ज़ा ब्रदर्स की मिसाल में काम किया था, जो कि 3 साल पहले रिलीज हुई थी उससे. मैंने कहा जी किया था. आपने रमेश त्यागी का कैरेक्टर किया था? मैंने जी हाँ, मैंने वही कैरेक्टर किया था. आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं? मैंने आपका ऑफिस में देखा नहीं, सॉरी, महबूब स्टूडियो के सामने 5 बजे आ जाइए. मैं गया, अपना फ़ोटो लेके आइए. मैं गया, वो एक सज्जन बाहर आए, बोले फ़ोटो दीजिए. अंदर लेके गए, मुझे बुलाया, अंदर आइए. नासिर साहब बैठे थे सामने, खूबसूरत सा लड़का बैठा था. उठे, बोले मेरा नाम मंसूर खान, मेरे डैडी. बैठे, मंसूर भाई याद कीजिए. मैं इधर बैठा हूँ, नासिर साहब, मंसूर भाई. नासिर साहब ने मेरा फ़ोटो ऐसे स्लाइड किया टेबल के ऊपर मंसूर भाई की तरफ. मंसूर नहीं, ये लड़का किलर में नहीं चलेगा, इसका फेस बहुत सॉफ्ट है, एक काम करो, इसको ट्रक ड्राइवर का रोल दे दीजिए. मैंने कहा चलो कुछ तो. नासिर साहब ने कहा मंसूर भाई को, हाँ, तो मेरा बहुत सॉफ्ट फेस है, ट्रक ड्राइवर का रोल दे देना है. तो मैं खुश हो गया. मैंने चलो एक रोल तो मिल रहा है, ट्रक ड्राइवर का ही सही यार. तो बोले आप कल आ सकते हैं? मैंने कहा सर कितने बजे आ जाऊँ, सुबह आ जाऊँ? बोले नहीं, शाम को 5 बजे आइए. ठीक है सर. हाँ, मंसूर भाई ने बोला कि नहीं, ये मेरा किलर है, आज रात को मैं आपको इनका एक सीन दिखाता हूँ, तब आप डिसाइड कीजिए. जो मैंने मंसूर भाई से बाद में पूछा कि आपने क्या दिखाया था, उन्होंने मिसाल फिल्म का एक सीन दिखाया था. उसके बाद जब भी मुझसे कोई नए बच्चे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मैंने भले ही एक सीन हो आपका, क्योंकि मिसाल मेरे सिर्फ 2 सीन थे, वो अच्छे से कीजिए, कौन आपको कहाँ देख रहा है नहीं मालूम. नेक्स्ट डे मैं सर गया, तो वही सज्जन मिले,
मैंने कहा मुझे बुलाया था, कल वो सामने जाइए डीपी साहब का वो केबिन है, उनसे मिल लीजिए। मैं गया, मेरे एक एग्रीमेंट रखा था, लाइफ में पहली बार एक एयर टिकट रखा था, साइनिंग का चेक था, डेट्स थी। सर मैं 1973 से काम कर रहा हूँ और 87 में हमारी 87 में कयामत की शूटिंग स्टार्ट हुई थी। 15 साल में मैंने तकरीबन 60 फिल्म्स की। मेरे घर में कभी फ़ोन की घंटी नहीं बजी, ना रिक्वेस्ट नंबर की बजी मेरे लिए। कयामत से कयामत तक रिलीज़ हुई, उसके बाद जो घंटी बजनी शुरू हुई आज तक भगवान की दुआ से बज रही है। नासिर साहब, मंसूर भाई, नुज़रत और जनाब आदिल साहब, मंसूर भाई, सबका मैं शुक्रिया हमेशा हर बरस हर नई फिल्म करते हुए अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैप्टन ज़ैक। मैं ब्रिज जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। हर साल उनके यहाँ से मेरे घर पे गुलदस्ता आता है मेरी बर्थडे के दिन, एवरी ईयर फॉर 30 years। झूठ बोल रहे हैं सरासर। शुरू में मैं भेजता था ना आमिर साहब को, और इनका एक कार्ड आता था थैंक्स का, और मैं हमेशा देखता तो आमिर खान जो साइन होते हैं लगता है स्कूल के बच्चे ने साइन किया। मुझे मालूम नहीं आपके साइन कैसे अभी। बहुत साल तक मैं भेजता रहा, 14 मार्च को, और उसके बाद जब गुलदस्ते बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए, इनका कार्ड आना बंद हो गया, तो मैंने भेजना बंद कर दिया। और दिस इज द फैक्ट। नुज़रत के टच में रहता हूँ, कभी कभार आमिर साहब पे बहुत प्यार आता है तो मैं नुज़रत जी को मैसेज भेज देता हूँ। मैं उसकी बेबी है मेरी, हो उसको मैं बेबी लिखता हूँ सर कि नुज़रत बेबी प्लीज़ आमिर को बोलिए, जनाब आमिर साहब को बोलिए कि मैंने याद किया, सलाम बोला। ये झूठ बोला इन्होंने, मैं इनको गुलदस्ते नहीं भेजता। आप किस साल में बंद हो गए? भाई देखिए, क़यामत के 3-4 साल 5 साल तक आपका नहीं 10-12 साल तक तो आते हैं। इतना आया होगा, इतना तो मुझे याद है। तो उसके बाद गुलदस्ते भर गए तो मैंने कहा कहाँ दिखाई पड़ेगा मेरा गुलदस्ता यार। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Can I say something? Please. शिव, This for Amir. मेरी कोई कहानी नहीं है, ना नासिर साहब की है ना मंसूर साहब की है। मेरी कहानी आमिर से है। अरे Sorry. ये कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैं स्ट्रगल करता था, आवारागर्दी करता था, अपनी बॉडी बनाता रहता था, अचानक एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, उसका नाम था अजीत पाल, बोले यार मेरे डैड की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ पुणे इंस्टीट्यूट की, तू कर लेगा? बोले पैसा मिलेगा क्या? हाँ 500 रुपये मिल जाएगा। 500 रुपये अच्छी बात है, ठीक है। कौन आएगा? तो बोले आमिर करके कोई लड़का आएगा, सुबह सुबह जिम में मिलने आ जाएगा, तू मिल लेना ज़रा। आमिर खान आया विथ हिज माइक्रो शॉट्स के साथ। I didn't say it, he did. But he was very cute those days. Now he came inside and he asked my trainer, शिवा कौन है इधर? तो I was there inside, से वो मिलने आया। तो आमिर खान was there, हाँ बोलो। तो आमिर मुझे बाहर लेके गया। Do you remember that आमिर? बॉन के Yeah, बाद। exactly. तो मैंने हाँ आमिर बोलो। बोले वो अजीत ने बताया ना वो कर नहीं पा रहा है वो फिल्म, तो तुम करोगे? मैंने बोला कर लूँगा यार, क्या काम धंधा तो है ही नहीं, आवारागर्दी कर रहा हूँ, कहाँ जाना है? तो बोले पुणे जाना है। तो मैंने ठीक है कितने बजे? बोले आज 2 बजे हम दादर में मिलेंगे, दादर टीटी में, और टैक्सी शेयर करेंगे, मैं तुम और तीसरा है अमोल गुप्ते। आई सेड फाइन। आमिर वहाँ खड़ा था, मैं भी पहुँच गया, हम तीनों पुणे गए। पुणे में शूट कर रहे हैं, आई एम प्लेइंग यूजुअली शूटिंग फॉर अ डिप्लोमा फिल्म फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट्स पुणे इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर मैं यूजुअली विलन का रोल कर रहा था, आवारागर्दी जैसा कैरेक्टर। आई वाज प्लेइंग आमिर्स फ्रेंड। कमाल की बात ये थी कि हम लोग शॉट देखे चले जाते थे, हम घूमने चले जाते। आमिर खान सुबह 9 से लेकर टाइम का कोई भरोसा नहीं, दूसरे दिन 10-11 बजे तक वो सेट पे ही रहता था, और हर शॉट की चीज, हर शॉट, हर डायलॉग में इतना ध्यान देता था। मैंने बोला यार ये हीरो बनेगा कि डायरेक्टर बनेगा? तो अमर बोलता है ये ऐसा ही है, ये जो भी करेगा परफेक्ट करता है, एक वर्ड यहाँ वहाँ नहीं हो सकता। सो गुड टाइम, हर चीज़ मैं इससे काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और काफ़ी कुछ सीखा हूँ उस शूटिंग डेज में। आई वॉज वेरी हैप्पी वर्किंग विद हिम। देन वक्त आया कि वो फिल्म ख़त्म हो गई, हाफ एन आवर का डिप्लोमा फिल्म था, ख़त्म हो गया। राजीव सिंह की फिल्म कमाल बन गई, बहुत कुछ नाम कमाया उसने। उस ग्रेजुएशन फिल्म, हाफ एन आवर फिल्म थी। थोड़े वक्त के बाद मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूँ पाली हिल की तरफ, एंड अचानक वही माइक्रो शॉट्स में आमिर खान आ रहा है। अच्छा आमिर व्हाट आर यू डूइंग हियर? अरे वर्कआउट करने गया था बंगले पे। अच्छा क्या कर रहा है? बोले फिल्म कर रहा हूँ।
कौन सी फिल्म कर रहा है? बोले यार नासिर चाचा ना वो फिल्म बना रहे हैं, वो मुझे हीरो ले रहे हैं। तुझे हीरो ले रहे हैं? I was shocked because अभी मिठुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन को बड़े लंबे चौड़े बन रहे हैं। And he was a cute guy, young guy. तू हीरो बन रहा है यार, मेरे को यकीन नहीं आ रहा है। अच्छा तू बन भी रहा है तो मेरे को कुछ दिला देना रोल। बोले मैं कुछ नहीं कहता, मंसूर कैन डू दैट। ऐसे तू बोल दे कि तू हीरो है यार, तू बोल सकता है, रोल तो दिला दे। एंड यू नो आई एम अ गुड एक्टर यार, मैं तेरे सामने काम भी किया है। तो बाइक में बैठ जाना, तो बाइक पे बैठ गया वहाँ पर। And we went to the office, Nasir Saab's office. Straight we went. Straight there. So and he called Mansoor Saab from the office. He said, "Please come out now. Meet this guy." तो मैंने बोला ये कौन? बोले ये डायरेक्टर है। हेलो सर, हाउ आर यू? तो बोले कि मंसूर वो जो रोल है ना, वो जो जूही के ब्रदर का रोल, बलवंत का रोल, डू यू थिंक ही इज परफेक्ट फॉर दैट रोल? देखा, ठीक है, जाओ अंदर जाके वो एग्रीमेंट साइन कर लो। मैंने बोला सर ऑडिशन एक्टिंग करना है कि नहीं? नहीं आमिर ने बोल दिया तो ठीक ही होगा। उसके बाद मैं अंदर गया तो वो आज भी याद है, वो जो उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे, नाम भूल गया, उसके यहाँ काफ़ी बाल हुआ करते थे, शरीफ में। तो आके गया मैं तुझसे, सर मुझे पैसा कितना मिलेगा? बोले 1000 है। मैंने बोला 500 से 1 तो पहुँचा। एंड आई वाज सो हैप्पी इन डूइंग दिस फिल्म। एंड आमिर को काम करते हुए देखा, एंड मंसूर साहब को काम करते हुए देखा। मैंने एक जगह पे मेरी गलती हो गई कि मैं, आपने शायद देखा होगा एक शॉट में जब गोगा जी आगे आते और मैं और रविंद्र जी खड़े हुए हैं, तो आई एम लिटरली स्लीपिंग। एडिटिंग में हम लोगों ने बहुत बचाने की कोशिश की थी उसको, नहीं बचा पाए। लेकिन इट वाज सो, वो सो कैसे गए? मैंने सोचा कि मैं गोवा का फिल्म देखता रहूं तो नजर नहीं आएगा, तो गोगा जी को ऐसा देखा। Anybody should have taken offense since गोगा जी है। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग वो बोल रहे हैं और पीछे आदमी सो रहा है। आई थिंक वक्त हो चुका है कि हम ये टांग खिंचाई जो है इस स्टेज पर अपने एक बगलगीर होकर करें। तो इस वक्त पर मैं जरूर बुलाना चाहूंगी पूरे कास्ट और क्रू को कि आप प्लीज ऊपर आए। ओके, कास्ट और क्रू के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। आइए प्लीज आइए। और कहानियां और पोल खुलेंगी। आशा जी आई। बट वो शॉर्ट्स की बात इन्होंने की, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम बोल नहीं पाए थे। यार वो शहनाज नहीं आई आज, आलोकनाथ जी। आलोकनाथ जी मुझे याद है जब मैंने विजू साहब को फोन किया था, त्यांनी फोन उचलून मला सांगितले काय करतेस? तब मैंने कहा विजू साहब आप आएंगे, आमिर येतोय का? तो मैंने कहा हाँ, आमिर खान ने वादा किया है कि वो आएंगे। तो आई मस्ट से कि देयर इज वन सीन, बट विजू खोटे इज विजू खोटे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेजेंड विद अस। प्लीज जोरदार तालियों के साथ। इतने उम्दे परफॉर्मर हैं ये, इतने बड़े कलाकार हैं ये। It's really a learning experience. Vijay Saab, please. There was just one scene in the movie, and I don't know how I did it, but I did it. Because when you're acting, you don't know what you're doing, but you do it, and it hits the public, and the scene was good. That's all I can say. I won't say how I did it. I did it. Because an actor rarely knows how he did it, unless you're a method actor and all that, which I'm not. बस मैं आप सबके सामने यहाँ नीचे, ladies and gentlemen, I give you कयामत से कयामत तक। आपकी तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। 1988 तक ये तालियां वो पहुंचाएंगे, प्लीज कम ऑन। मैं जानती हूँ हाथ में आजकल सेल्फी स्टिक्स है। Thank you so much, guys. It was a lovely evening. Thank you. Thank you, Neeru Nasha. Thank you. Ladies and gentlemen, नशा प्रीमियर नाइट्स आपसे अभी विदा लेगा। कयामत से कयामत तक की पूरी टीम की तरफ से मैं रोगिनी आप सबको शुक्रिया कहना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार दिया आपने, एंड थैंक यू सो मच।
जोए भाई बहुत जल्दी पड़ गया है ना, क्योंकि थोड़ा पॉज नहीं, मैं थोड़ा पॉज एक बार पहले फैजल को करने दो, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर ये बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। को यहीं खड़ा करना, आई एम गेटिंग रेस्ट, आई एम मेकिंग स्टैंड एवरीवन टुगेदर एंड फिनिश इट ऑफ। परफेक्ट। फैजल या going to get everybody, yeah. सर आ जाएंगे 10 मिनट में, देन आपको गेट एवरीबॉडी इन। अच्छा हाँ, then तो फिर आमिर even we are all getting this. Faisal. Hi Faisal. Arjun Mohl from Radio Masha. I want to congratulate entire team of QSQT for completing 30 years और उम्मीद करते हैं कि ज़िंदा रहे तो 50वां साल भी मनाएंगे। And whatever I am today, it's because of क़यामत से क़यामत तक. So thanks to नासिर साहब, मंसूर साहब, आमिर साहब, आनंद मिलन जी, मजरूर सुल्तानपुरी साहब, and again entire team of क़यामत से क़यामत तक. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. पहले आप शेयर करेंगे. भाई हम तो पहले असिस्टेंट बने थे पिक्चर में, एंड इट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एज एन एडी, और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, एंड दे gave me all the experience for a film. I was very excited. It was my first film as an assistant director, and it was first film of my brother Amir Khan. So I was very excited for that. Mansoor was Mansoor's first film. तो बहुत एक्साइटमेंट था, और फिल्म बाद में बहुत हिट हुई, तो बहुत मज़ा आया, और अभी तक चल. It was my first film and I'm very grateful and thankful to Nasir uncle, Mansoor, Amir कि ये इतनी अच्छी फिल्म मिली और बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे, फैसल, अर्जुन भाई एंड जूही वगैरह, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया, एंड आई होप दे मेक द पार्ट 2 विद अस अगेन. To be very honest, I started my career with नाज़िर साहब. नाज़िर साहब ने पहली फिल्म मुझे दी थी मंजिल मंजिल, और उस कैंप के अंदर एक रेपुटेशन हो गया था कि मंजिल मंजिल के बाद ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त के बाद क़यामत से क़यामत जब बन रही थी, तो मैं किसी और की शूटिंग कर रहा था. आई गॉट अ कॉल, यू हैव टू कम हियर, बिकॉज इट वाज मंसूर
was a very very dear friend of mine. उसका पहला डायरेक्टर ये था, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए यहाँ, और अगर आपने वो फिल्म देखा होगा तो ये पूरी क़यामत शुरू होती है मेरे वजह से. So वो मेमोरी मुझे आज तक याद है. And I'm very grateful to Naz साहब and to Mansoor and the entire team of Qayamat Se Qayamat, who were really very nice to me. Thank you so very much. And I also got to play a small part in the film. I was assistant director, but one day Mansoor got up and he couldn't find an actor, so he put me in one of the goons role. That also I played. That was But you don't look like a goon. He looks like a blue lagoon. Okay, thank you. Firoz bhai, Shehzad bhai, please. Please come. Please. What is Qayamat Se Qayamat? But he was assisting to my dad's film. Okay. So and he was a very good actor. Okay. So I think at least दो picture के लिए he was the assistant and he was very thorough about the job. उसके मुझे एक बहुत ही ऐसे कई है, पर एक याद आता है कि जब मैं ऑफिस गया था तो मंसूर ने तो डन कर दिया, फिर नासिर साहब ने बुलाया और तब मुझसे पूछा था, बड़ा देशपांडे हो, हिंदी तो बोल लोगे ना? तब मैंने कहा था एक्टर हूँ, कौन सी भाषा. और तब बाहर निकला तो आमिर दिखा मुझे. मैंने कहा आमिर तू क्या कर रहा है यहाँ? मुझे पता नहीं था. तो उसने कहा मैं हीरो हूँ. तब मैं हंसा था. और देखो अब यहाँ पर खड़ा हूँ, वो कहाँ है? बिकॉज वी डिडंट नो. तभी वो हम लोग एक ही कॉलेज के थे, तब वो बैक स्टेज करता था. सो फॉर हिम टू नो नाउ, तो तब मुझे पता नहीं था कि वो हीरो है इस फिल्म का. सो इट वॉज वन ऑफ दोज. अगर आमिर होता तो और मज़ा आता. रोल के लिए किया गया. ये RGV की फिल्म थी राम गोपाल वर्मा, उसके लिए किया. और अपनी मूछ है तो उसकी बना के भी रखी है. हाँ दो बार प्लीज. माय वर्ड 30 साल के बाद सारे लोग अलग लगे. आई थिंक उसके बारे में नहीं.
हाँ 30 साल हो गए हमारी पहली फिल्म को क़यामत से क़यामत तक को, और ऐसे लगता नहीं कि 30 साल गुजर गए, ऐसे लगता है कि कल की बात थी। तो आज बड़ा खुशी का दिन है हम सब के लिए। हम लोग सब एक बार फिर बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, और बहुत सालों बाद मैं दोबारा इस फिल्म को देखूंगा जो मेरी पहली फिल्म रही है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीवन, द कास्ट एंड द क्रू, एंड पुरानी यादें जो हैं वो हम लोग ताज़ा करेंगे आज। शूट के पल तो बहुत हैं। मुझे याद है जब हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, तो क्लाइमैक्स के मतलब एकदम आखिर में जब जूही को गोली लगती है तो मैं दौड़ के उनके पास जाता हूँ और वो दम तोड़ रही हैं, और वो शॉट ये था कि मुझे रोना है, और उनका नाम फिल्म में रश्मि था, तो रश्मि रश्मि करके मुझे रोना है, और फिर उसके बाद मैं अपने आप को छुरा मार देता हूँ। तो जैसे ही शॉट रेडी हुआ और टेक हुआ तो मैं एकदम मूड में आया। मंसूर ने एक्शन बोला, मैं दौड़ते हुए गया, जूही को मैंने उठाया बाहों में, और रश्मि रश्मि बोल के जो रोना था उसके जगह पे मैंने जूही जूही बोल के मैं रोने लगा। अच्छा, मैं एकदम मूड में जूही जूही करके मैं रो रहा हूँ। अब मंसूर ने बोला कट कट कट, तो मैं सोच रहा हूँ कट क्यों किया यार, इतना अच्छा जा रहा था शॉट। तो मंसूर ने कहा यार तुम जूही बोल रहे हो, उसका नाम रश्मि है। तो या कॉल दो, 2 मिनट में कास्ट क्रू फोटो कर लेते हैं। चलो भाई, अमर खान साहब क्या हाल है आपके? क्या हाल है? अरे भाई अभी बीच में 50 लोग थोड़ी आ सकते हैं। Yeah? No? Yes, yes. I want to have one video. Yeah, Amir Mansoor, Yes, the magazine. Let's go up there. I'll go inside. Yeah, go. You said you're the crew, madam. Stay with me. हाँ हाँ, आप लोग बोल रहे थे? 30 साल हो गए आप। You come this way. हाँ। चेंजेस मेरे में जो चेंजेस है वो आप मुझे बताइए। मेरे चेंजेस मुझे नज़र नहीं आते हैं। बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग डे फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग ये फिल्म दोबारा देखें। मुझे तो 30 साल हो गए। आई हैव नॉट सीन इट फॉर 30 years. No, 25 we saw. We saw it where?
we celebrated the 25th. I was there. Yeah, of course. Oh, I forgot completely. Yeah. Mami, only casted. Oh, it And then was we had a not like- party at Pali. Right. Well, thank you. Thank you. कयामत से कयामत तक नाम एक्चुअली कोई भी नाम पसंद नहीं आ रहा था और हम लोगों ने बहुत बोरिंग नाम रखे थे जो डायलॉग में भी है, नफरत के वारिस और ये वो बहुत लिटरल. एक्चुअली माय फादर वाज वेरी गुड एट नेम्स. तो उन्होंने एक शाम को ऐसे ही उन्होंने सोचा कि इट इज़ समथिंग जो कहानी जो है वो एक क़यामत से शुरू होती है, वन बैड इंसिडेंट एंड लीड्स टू अनदर. कयामत तो से उन्होंने कयामत। ऐसे ही ये नाम बोला, ही मेड इट अप. ऑब्वियसली ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है. आमिर, आप अपनी फिल्म को लेके शुरू से ही मतलब काफी भावुक का प्रयास करते हैं. इस फिल्म के भी प्रमोशन आपने खुद ने किए थे. जी. पोस्टर्स लगाए थे मेरे ख्याल. जी, मैं और जुर्शी और हम लोग सब सड़कों पे घूमते थे पोस्टर लगाने के लिए, दीवारों पे, टैक्सीज़ पे, ऑटोज़ पे. तो कई ऑटो वाले जो है हमारे, उन्होंने फ्री में पोस्टर्स लगाए. यहाँ पे वो आज मौजूद हैं. हमारे टैक्सीज़ और ऑटोज़ पे हमारे फ्री फ़ोटोज़ लगाए थे. तो आज जब हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे थे तो मुझे याद आया था, हमने उनको भी बुलाया. अमिताभ बच्चन जी से हमारी बात हुई थी. उन्होंने कहा कि आपने रिसेंटली काफी अच्छी उनकी फिल्म रिलीज हुई है 1002 नॉट आउट. जी. उसके लिए कुछ मतलब बहुत ही अच्छा मैथमेटिकल बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन का कोई बताया था. बड़ा सराहना कर रहे थे आप. वो तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे उनका ट्रेलर बहुत पसंद आया था. तो आई रियली लाइक द ट्रेलर एंड आई एम श्योर द फिल्म इज़ डूइंग वेरी वेल एंड आई होप टू सी द फिल्म सून माई सेल्फ. जी. Please allow me to ask you about Zaira. She has posted. अरे नहीं, आज हम लोग QSQT के बारे में बात करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा विद या मैं ले लूँ. पीछे आ जाओ. इसी में ले लेते हैं, आप ले लीजिएगा बाद में. हेलो अलका जी, वेलकम. कैसा लग रहा है ये रीयूनियन फिर से हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है एंड QSQT is a film I'm proud of and we have such fond memories of the time when we were recording for the film और they are etched in my memory forever. आपका फेवरेट गाना सबसे डिफिकल्ट सा? मेरा फेवरेट गाना है अकेले हैं तो क्या गम और क्यों? अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है. अकेले आई डोंट नो, एक्चुअली सारे गाने जो हैं दे आर अमेजिंग, ऑल द सॉन्ग्स, बट माय पर्सनल फेवरेट इज अकेले हैं तो क्या गम है. आई लव दैट पार्ट, दैट एक जरा तेरे तो हम कब से सनम. आई लव दैट लिटिल पीस, सो मे बी दैट्स व्हाई. ऑलराइट. एंड आज यहाँ पर आपकी गाई हुई गानों की दीवानगी देखकर कैसा है? Like all the songs that you sung, people still love it and sing it and all love to hum it even today, and they are as young as you. So how do you feel? बहुत अच्छा लगता है. All the youngsters today, my daughter also loved that song and they hear it on loop again and again. That shows that these songs are timeless. So just give a bite. Hi, मैं हूँ Kayamik and I'm here. Kayamik से Kayamik तक की 30 years of celebration. और thank you so much, Radio Nasha or something. Whatever message you want to give to your fans of the song. Hi, I'm Alka Yagnik. QSQT has completed 30 years. आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसको इतना पसंद किया, इसके म्यूज़िक को इतना पसंद किया. म्यूज़िक भी एवरग्रीन है, फिल्म भी एवरग्रीन है. बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए. एंड अभी तो 30 years हुए हैं, अभी और बहुत सारे होने बाकी हैं QSQT को. सो आई लव द एंटायर यूनिट एंड I love those days when we were working on the film. Thank you so much, ma'am, and enjoy कीजिए वही film मेरे Yes, कार. yes. Thank you for coming. Excuse me. Excuse me.